Okay. Yes, ma'am. Okay. Please mute yourself, all of you. Otherwise, मैं यहाँ से permanently mute करूँगी. Unless and until you unmute yourself to ask any doubt, huh? Please take care of it. Just give me 1 minute. Huh? Starting with the presentation. So last time we saw how do we encode 4-bit binary word, okay, into a 7-bit Hamming code format. So just briefly revise that. Let's briefly revise that. So suppose say any 4-bit data is given to you, and we have to convert that into a 7-bit Hamming code format. We are following strictly over here even parity system only, means we are focusing on even number of ones. We are not doing odd parity at all because even parity has been used up in the syllabus. So that itself I'm going to elaborate and tell you, because in parity code checking, error detection and correction also even parity is only used. So I am not at all going to do all parity because it's not there in the portion. It is being solved with respect to even parity only. Otherwise, it becomes a lot of confusion. That's why. Nothing else. So let's briefly revise this. So a 4-bit Hamming code, whatever is given, let's say it is given as 1111, for example. So it can be written as that 1111 takes the place as D7, D6, D5, D3 in the 7-bit Hamming code pattern. Okay, so we write it starting with the MSB 1111. In this 7-bit Hamming code pattern, we have to find values of P1, P2, and P4. Now, how do we get these values of P1, P2, and P4? We get the values of P1, P2, and P4 by combinating with the other bits. And the combination goes as 4567, 2367, 1357 bit position. So let's take the first one. P4, D5, D6, D7. So in this D5, D6, D7, you write down the values of the code given to you. So it is 111. You have to find the value of P4 such that all 4 in combination will give you an even parity. That is even number of 1. So what is the P4 value going to be in this case? 1. Why? Because by putting P4 as 1, total number of ones in the 4-bit data is becoming 4, which is an even number. That's why it becomes an even parity. And hence P4 takes a value as 1. Next we take combinations of the 4-bit as P2, D3, D6, D7. Now put the values of D3, D6, D7. We put it from the values given to us, 1, 1, 1. We have to place P2 over here in such a way that after placing P2, the 4 combinations of the bit give you even parity. So if P2 is put as 1, then it becomes 4 number of ones, which becomes a even parity. Next combination is 1357. So P1, D3, D5, D7. Okay. So here also you put the bits D3, D5, D7 as 111. Choose P1 in such a way, means P1 can be either 0 or can be either 1. Put it in such a way that all 4 together makes up a even parity.
So P1 we put it as 1 so that it becomes total 4 number of 1. Hence, the 7-bit Hamming parity code is written as D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1, and then you put up the values. Is that clear? Did you have any particular doubts or confusion in this particular formation of Hamming bit code? Okay. Now you have to remember the same format for error detection and correction also. Even the same combination. ये ध्यान में रखना है. हाँ, 4 5 6 7 2 3 6 7 1 3 5 7 ये 3 कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है पैरिटी बिट फाइंड करने के लिए एंड ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है D7 D6 D5 P4 D3 P2 P1. This particular combination is common for encoding the Hamming code format as well as for finding error and correcting it. Okay, so we go on to the next one now. Error detection and error correction method. Now 7-bit Hamming code is received as Now 7-bit Hamming code is received as 111101. Okay, now you need to check the code for any error bit and hence find the correct code. यानी कि checking भी करना है कि गलत है कहाँ पे तो और उसे लिखना भी है बराबर in a proper format. Correct code भी लिखना है तो दोनों चीजें इसमें आ जाती है. Okay, now first of all, let's write down the data in the correct Hamming code format, in which the format of Hamming code is D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1. तो हम values लिख लेंगे जो हमें Hamming bit code दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 0 1. ठीक है, ये कोड फॉर्मेट में लिख लिया ना. हमें पैरिटी बिट्स चेक करना है कि जो भी पैरिटी बिट्स हमें रिसीव हुआ है वो डेटा में वो बराबर से है कि नहीं इवन पैरिटी के हिसाब से. हाँ, यहाँ पे एक वर्ड रह गया द 7-bit इवन पैरिटी कोड आएगा बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इवन पैरिटी है कि ऑड पैरिटी है. तो हम लोग पैरिटी चेक करेंगे इवन पैरिटी के हिसाब से. तो लेट्स पुट अप D5 D6 D7 वैल्यूज. ओके, D5 1 है, D6 1 है, D7 1 है और P4 1 है. ठीक है, अभी ये वैल्यूज पुट अप करने के बाद तुम ये चेक करो कि ये जो वैल्यू है P4 का वो बराबर है कि नहीं है. ये वैल्यू बराबर है. Yes, ma'am. Yes, इवन miss. पैरिटी है ना, मींस P4 1 ही होना चाहिए ना, तो बराबर है. सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट अभी लिखेंगे हम D3 D6 D7. तो D3 1 है, D6 1 है, D7 1 है, P2 0 है. ठीक है, P2 को चेक करो ये बराबर है क्या. No, ma'am. एरर आया ना. एरर आ गया. हाँ, तो ये गलत हो गया यहाँ पे. ठीक है, फिर D3 D5 D7 एंड P1 चेक करो P1 को कि ये बराबर है क्या. Yes, ma'am. Right. Correct. Yes, sir, correct. ठीक है, तो अभी हम ये एरर बिट्स को नाम देंगे. जस्ट अ मोमेंट.
2 minutes. मैं लिख नहीं पा रही हूँ, जस्ट मोमेंट, मुझे टैब मेरा रिकनेक्ट करने दो. ओके, अभी मैं लिख पा रही हूँ. So now what are we going to do is just to make this more simple and understandable and relatable, I am going to use error bits. जो तुम्हें शायद रेफरेंस बुक में दिखने नहीं मिलेगा, वो मैंने ऐसे ही डाला है एडिशन, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो. तो हम ये एरर बिट्स देंगे. ओके, P1 को रिलेटेड जो एरर बिट रहेगा वो रहेगा E1, P2 को रिलेटेड जो रहेगा वो रहेगा E2, और P4 को जो रिलेटेड रहेगा वो मैं E3 कर रही हूँ, सीक्वेंस में कर रही हूँ, लिस्ट बिट टू मोस्ट बिट. ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से यहाँ पे ये जो E1 है इसमें कोई एरर था नहीं पैरिटी बिट में, तो हम उसका वैल्यू डालेंगे 0. P2 में एरर है तो E2 का वैल्यू डालेंगे हम 1, और P4 में एरर नहीं है तो E3 का वैल्यू डालेंगे हम 0. ठीक है, तो हमें जो एरर बिट्स मिले वो हमें क्या मिले, E3, E2, E1 एज 0, 1, 0. ये बाइनरी में वैल्यू है, यानी कि डेसिमल में क्या वैल्यू हो जाता है 2. सो देयरफॉर एरर इज इन सेकंड बिट ऑफ द हैमिंग कोड. ठीक है, सो देयरफॉर ये जो P2 है, ये जो 0 था वो बन जाएगा 1. दैट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ P2. ठीक है, हेंस ये एरर फाइंड किया हमने, डिटेक्ट किया, अभी करेक्ट करेंगे. हेंस द करेक्ट हैमिंग कोड इज क्या होगा, अभी करेक्ट हैविंग कोड बोलो मुझे. बाकी सारे बिट्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ वैल्यू जो हमने फाइंड किया P2 का वो 1 हो जाए. डिड यू गेट द आंसर? समझा क्या? एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन. यस मिस. ठीक है, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं. हाँ बोलो. Ma'am, I have a doubt, ma'am. When due to noise, only parity bits be manipulated. No other bits can be manipulated. नहीं, ऐसा नहीं है.
पैरिटी बिट्स भी गलत हो सकता है और डेटा बिट्स भी गलत हो सकता है. इट डिपेंड्स. It depends upon what kind of transformation of data is taking place from one place to another place. This will work in both the ways because इसके आगे एक correlated system है. तुम आगे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें डिटेल में, मीन्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ोगे तो डिटेल में समझ में आए. ओके मैम, थैंक यू मैम. Okay. Now next वाला देखते हैं. So the Hamming code, the 7-bit Hamming code is received as 1 1. I will write it down. Huh? 1 1 1 0 1 0 1. ठीक है. ओके. नाउ हम लोग इसके बारे में इसका पैरिटी चेक करेंगे. हाँ, D5 D6 D7 लिख लो. D5 D5 D6 D6 D7. ठीक है. और P4 लिख लो. हाँ, नाउ चेक P4 बराबर है क्या? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. हाँ, नो. ठीक है. देन नेक्स्ट D3 D6 D7 लिखेंगे. P2 क्या है? 0. अभी चेक करो. इज P2 करेक्ट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. Now D3 D5 D7 and P1. Okay. Now check this. Yes, ma'am. Yes, right, ma'am. Right. हाँ, ये राइट है. ठीक है. अभी एरर बिट्स लिख दो. हाँ, तो यहाँ पे एरर E3 आएगा 1 बिकॉज एरर है. E2 will be also 1, एरर है. E1 will be 0 because error नहीं है. So therefore the error bits are just patience. क्योंकि पता नहीं, ये तो रोज का हो गया है मेरा. अभी मैं लिख नहीं पा रही हूँ. Ma'am, while writing error, we have to go by release. हाँ, क्या 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 पूछा बेटा? For error bit, we have to start from least bit, no? लीस्ट बिट यानी कि नहीं समझा मुझे.
यस मतलब दिया, आई हम डिड। P4 को भी इवन ले सकते थे ना? नहीं, हम P4 को इवन नहीं लेंगे, हम P4 को E3 ही लेंगे। ये जो तुम्हारा P1 है, ये तुम्हारा लीस्ट पैरिटी बिट है, तो E1 भी लीस्ट एरर बिट बनेगा उसके रिलेशन में। समझा ना? अभी P4 तुम्हारा मोस्ट बिट डेटा है पैरिटी का, तो E3 तुम्हारा मोस्ट बिट डेटा बनेगा एरर का। दैट इज द लॉजिक। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? Yes. ओके, सो ये वैल्यू आया 110। अभी 110 का मतलब क्या होता है डेसिमल में? व्हाट इज 110 इन डेसिमल? 6 6 इन डेसिमल। ओके, सो देयरफॉर हम लिखेंगे, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्चुअली गेटिंग सो इरिटेटेड, यू नो। और ये ना, मैं जोक बोलूंगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ये सुबह के लेक्चर में ही होता है। क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा लेक्चर रहता है, फिर मेरे जूनियर कॉलेजेस के लेक्चर रहते हैं। आई एम बेसिकली अ जूनियर कॉलेज फैकल्टी। आई टीच 11th 12th बाइफोकल सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। I teach FIBSc, I teach digital electronics as a visiting faculty. So just for information, I'm telling you, which I haven't told you on the first. तो सबसे पहला फनी थिंग है, सबसे पहला तुम्हारा लेक्चर रहता है और ये मेरा टैब बहुत फनी बिहेव करना शुरू कर देता है। वेरी फनीली इट बिहेव एंड देन इट बिकम्स ओके। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग मोर इरिटेटेड। कि व्हाट रीजन आई विल टेल यू, यू विल फील दैट हाँ मैम तो ऐसी हम लोग को उल्लू बना रही है सुबह सुबह। Hence, the error bit is और एक तो मुझे ये ऐसा बहुत कुछ ये हो जाएगा स्क्रिबल, तो मुझे पसंद भी नहीं है। Hence the error bit is, अभी 6th बिट चेंज होगा। 6th बिट कौन सा है? P2. क्या है? J1 हाँ, क्या कौन सा है 6th बिट? P2. P2 कैसे होगा? सेकेंड 6th बिट D6 होगा ना? अभी समझा क्या तुम्हारा डाउट? तुम पूछ रहे थे कोई कुछ देर पहले मुझे। मैम, कैन यू एक्सप्लेन अगेन मैम? अरे अभी ये एरर बिट तक समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। हाँ, तो ये एरर बिट्स का वैल्यू जहां पे एरर आता है, जहां पे वो गलत है पैरिटी, वहां पे हम 1 डालते हैं। ठीक है, जहां पे पैरिटी बराबर है वहां पे हम 0 डालते हैं। उसके हिसाब से हमें वैल्यू मिला 110। ना 110 इन डेसिमल इज 6। 6 कौन सा पोजीशन है? D6 ना? यस मैम, बराबर मैम, थैंक यू तो मैम। वो जो 1 है वो 0 होगा। अभी किसी ने मुझे डाउट पूछा था, इसके लिए मैंने बोला रुको थोड़ा देर, वो आगे आएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सेकंड बिट आया। सेकंड बिट कौन सा था? पैरिटी है। तो पैरिटी भी चेंज हो सकता है और डेटा भी चेंज हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? यस मैम। हाँ, तो D6 जो अभी 1 था वो 0 हो जाएगा, बिकॉज इसमें दो ही चीजें हैं, बाइनरी वैल्यू आइदर 1 या 0। तो अगर 1 रहेगा तो एरर है तो हम 0 कर देंगे, अगर 0 है तो एरर रहेगा तो हम 1 कर देंगे। तो अभी D6 0 बन गया। Hence now we will write down the corrected code value. Hence the
corrected 7-bit even parity Hamming code is 1d6 हो जाएगा 0, बाकी सब वैसे ही होंगे, and that becomes your answer. Understood all of you now? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अभी एक मेरा ऐसा टिपी क्वेश्चन, टाइम पास वाला क्वेश्चन, यानी कि तुम्हारा लॉजिक भी सोच रही हूँ मैं कैसे रहेगा, अच्छा है नहीं है, बिकॉज आईटी वाले हो तो लॉजिक अच्छा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लॉजिक टेस्टिंग क्वेश्चन है ये मेरा, क्योंकि मैं जो इतना ये स्ट्रेस करती हूँ कि बराबर से लिखना चाहिए, कुछ मुझे वो लिखने में गड़बड़ नहीं चाहिए, मैं कुछ ऐसा क्रॉस मार्क आया तो भी मैं उसको इरेज करके मैं बराबर से लिखने का कोशिश करती हूँ। Why do I do all these things? Why do I do these funny things? Any logical reason behind me doing such funny things? क्या रहेगा बोलो? Even a single comma can change the sum. हाँ, that is thing. Other thing, मैंने बोला लॉजिकल भी है कंफ्यूजन और नहीं फनी होना भी है। चाहिए, हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, यू आर गिविंग एरर आएगा गिविंग करते समय, हाँ हाँ, एरर आ सकता है। एरर आ सकता है। तुम्हें शायद मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं I don't know how correctly or properly I'm writing on the tab. It is up to you. Everybody over here will have an individual perspective to look at the lectures taken. तो मैं ठीक ठाक लिखने का कोशिश करती हूँ टैब में, ठीक है, मीन्स पीपीटीज में। मेरा सवाल ये था, बाकी सब तो वो सिलेबस के बारे में छोड़ ही दो, मेरा सवाल ये था मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, थोड़ा ये मेरे में है, वो पागलपन है, तो ऐसा मैं क्यों करती हूँ? आपको परफेक्शन अच्छा लगता है शायद। नहीं, वो परफेक्शन भी नहीं है। आई विल नेवर से दैट आई एम परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है इधर। ओके 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 हूँ मैं, बट मैं कोशिश करती हूँ। तो ऐसा मैं क्यों करती हूँ, क्या रीजन रहेगा इसके पीछे? अगर और अगर सोचो ना, थोड़ा लॉजिक पे स्ट्रेस दो। अगर मैं ये सवाल स्टूडेंट से पूछ रही हूँ तो व्हाट आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग, कि जो जिस तरह से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उस तरह से मुझे रिटर्न में प्रेजेंटेशन एक्सपेक्टेड है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। हाँ, तो मेरे तरफ से मैं कुछ क्लमजी नहीं लिख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक्स नहीं हो रहा है। तो दिस इज द वे आई एम एक्सपेक्टिंग योर असाइनमेंट्स टू बी। एंड इफ like you never know if there is the final exam is going to be online or offline, because there are so much of news regarding college restarting. उसके ऊपर अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, बट द न्यूज इज इन द मीडिया. So like if we start and if we tend to have offline exam, definitely your paper presentation will matter a lot for me. That is the reason I asked you this question. समझा क्या आप? इवन तुम जो जर्नल्स Yes, लिखोगे वो, हाँ, तो मैं लिख रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी, मैं ऐसी हूँ, मैं बता के रख रही हूँ तुम्हें, क्योंकि अभी हम लोग पर्सनली मिल नहीं रहे हैं ना, तो तुम समझ कैसे पाओगे मुझे? तो मैं खुद ही बता रही हूँ मेरा वीक पॉइंट, ये मेरा वीक पॉइंट है। प्रेजेंटेशन अच्छा ही होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अभी ये तुम लोग करने वाले हो, मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं डेटा तुम्हें दूंगी कोई तो एक। 7-bit हैमिंग कोड इज रिसीव्ड एज, लेट्स टेक द डेटा एज, कोई फनी वाले लेते हैं हम। अभी मुझे बताओ, ये मैंने लिख के दी है कॉम्बिनेशन, सॉल्व करो। मैंने बोला है तुमको हमेशा कि एक बुक और पेन लेके बैठा करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व।
मिला? मैम सॉल्विंग। ओके। मुझे तो, मैं सोच रही हूँ ऑफलाइन लेक्चर्स कब शुरू होंगे, ये बहुत मीन्स ओके, इन अ वे आई एम एंजॉइंग ऑल्सो, बट दैट classroom teaching, that thing is different only. Done, ma'am. हाँ, हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a moment, huh? Done, ma'am. हेलो, 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 सॉरी। Yes, Ma'am. ma'am. हेलो। हाँ, हाँ, सॉरी। मैं बात कर रही हूँ और म्यूट पे था। हाँ, बोलो। हाँ, मैं सॉल्व करके बताऊँ या फिर किसी को जमा सॉल्व करने के लिए है? Were you able to solve it? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो कौन से Yes, इसमें ma'am. एरर है? चलो पहले बताओ। D5. हाँ, D5. D5. D5, D5। D5. चलो D5 में. अभी हम चेक करते हैं। D5 में एरर है, ठीक है? तो जिन्होंने नहीं किया है या फिर जो लोग दूसरे ही विंडो पे कुछ गेम। दूसरे ही इस पे अगर एरर है तो हम चेक करेंगे, ठीक है? तो 1011 ठीक है? तो जिन्होंने नहीं किया है, जो दूसरे विंडो पे कुछ पबजी खेल रहे हैं, माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, रोब्लॉक्स खेल रहे हैं, उनके लिए मैं ये कर रही हूँ। तो वो विंडो छोड़ के ये विंडो पे आ जाओ। सो D5, D6, D7 वैल्यूज बराबर लिख रही हूँ क्या? देखो। और P4 1, ठीक है? तो अभी P4 में एरर है।
P4 में Yes, एरर ma'am. है, Yes, ma'am. बराबर? P4 में एरर है। So ये एरर है, this is not correct. Next we write down D3, D6 and D7 and P2. ठीक है? So now if you check this, is P2 correct or No error. is P2 wrong? No error. So it's correct. ठीक है? Even parity है. Next D3, D5 and D7. ठीक है? और P1 1 है, इसमें एरर है, बराबर? ये भी इनकरेक्ट है। तो अभी हम इसके हिसाब से एरर बिट्स के वैल्यू लिखेंगे। ठीक है? तो P4 will correspond to error bit E3, highest bit. तो वो क्या होगा? 1 होगा। P2 will correspond to error bit E2. वो होगा 0 बिकॉज एरर नहीं है। और E1 होगा 1 बिकॉज एरर है। So therefore इधर मुझे नया टैब लेना पड़ेगा या कुछ और देखना पड़ेगा। द एरर बिट्स आर E3, E2, E1 is 1, 0, 1 in binary. So what will be the value in decimal? 5. 5. So therefore, the error is in 5th bit. Okay, अभी समझ में आया ना कैसे सॉल्व करने का? So basically, what you need to remember? Basically, what you need to remember? Error code and its conversion. कन्वर्जन वो भी Error. ठीक है, तुम्हें ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सबसे Error बड़ा is तो equal to चीज है कि हैमिंग कोड फॉर्मेट याद रखना। D7, D6, D5, P4, D3, P2, P1 एंड देन दीज कॉम्बिनेशंस 4, 5, 6, 7, 2, 3, 6, 7 एंड 1, 3, 5, 7, ये ध्यान में रखना। ठीक है? तो देखो यहाँ पे D5 जो है, वो जो 1 था वो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर आंसर रहेगा करेक्टेड कोड 1, 0, 0 हो जाएगा D5, बाकी सब वैसे के वैसे ही होंगे। समझा क्या सबको? Yes, ma'am. तो ये हमारा कोर्स खत्म हो गया आज। मैम हाँ बोलो। मैम ये आप अपलोड करोगे? हाँ मैं ये अपलोड कर दे दूंगी। ठीक है मैम एक मिनट अभी। हाँ बोलो। मैम, वो क्या? पैरिटी का आपको एरर कैसे मिला? लाइक यहाँ पे आपने P4 तो 1 है, तो इट इज इवन। वैल्यूज क्या 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 बेटा? यहाँ पे A में आपको एरर कैसे मिला? एरर कैसे मिला? ये जो अभी P4 P4 अगर हम लोग देखे जाए कॉम्बिनेशन के हिसाब से, इट इज नॉट गिविंग यू द ऑल 4 कॉम्बिनेशन इज नॉट गिविंग यू इवन पैरिटी, इसके लिए उसमें एरर है। 3 नंबर ऑफ वंस हो जाते हैं ना। फिर सेकेंड Okay, इसमें P2, D3, D6, D7 में 2 नंबर ऑफ वंस है, तो इवन पैरिटी है तो एरर नहीं है, इसके लिए E2 0। और लास्ट में P1, D3, D5, D7 में 3 बिट्स है, 3 बिट्स हाई है, तो एरर है। ऑड पैरिटी है, इसके लिए इवन 1 है। अंडरस्टूड नाउ? यस मैम, थैंक यू। ओके तो ये हो गया। अभी टाइम है तो मैं उसके आगे का शुरू कर रही हूँ।
अच्छा, ये अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया. हाँ, सॉरी, मैं भूल गई बोलना तुम लोग को. फर्स्ट चैप्टर इज ओवर and we are starting with the second chapter. Okay. Okay. So अपना first chapter number systems and codes is done and we are starting with the second chapter of unit 1 which is binary arithmetic. ठीक है. तुम्हें फर्स्ट चैप्टर पे अगर असाइनमेंट कुछ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ये रेफरेंस बुक में है एक्चुअली काफी सारे. मैं बताती हूँ तुम्हें. तुमने वो खोल के भी देखा है कि नहीं पता नहीं. जस्ट अ मोमेंट. ये तुम्हारे क्लास में इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पसली आई एम शोइंग यू बिकॉज मैं इधर से ही पूरा पढ़ाती हूँ. उतना सा डिटेल में नहीं है हम लोग को, तो जितना पोर्शन में है मैं उतना बताती हूँ. बट फुल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं ये एक ही बुक यूज कर रही हूँ. NG पालन इज द ऑथर नेम. ठीक है. लॉजिक सर्किट्स एंड एप्लीकेशन. तो इधर है ना, यहाँ पे ना हर एक चैप्टर के पीछे ना एक्सरसाइज होता है, तो वो आइदर या फिर मैं दूंगी, कैसे भी मुझे चलेगा. पर तुम लोग ये कितना खोल ओपन करके कितना देखोगे मुझे नहीं पता. आई डोंट रियली डोंट नो. ये देखो, ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने. ये देखो काफी सारे हैं इधर. समझा क्या? एक्सरसाइज के एक्सरसाइज नहीं ये. अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो वो प्लीज तुम लोग चेक करना. हाँ, आई एम गोइंग बैक टू द सेकेंड चैप्टर नाउ. एक्चुअली टाइम हो गया है. मैम अगले लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर ये है 11:35. क्या ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? हाँ मैम. हाँ मैम 8:30 से लेक्चर चालू हो गया आईटी का. हाँ बेटा.